Hello everyone, very good evening and welcome to BYJU'S exam prep. Took me a few seconds to go live. I thought there was a glitch, but I think everything is clearly audible and visible to everyone watching me live. So everyone who's planning to sit for CLAT or who thinks or who has a hunch if they can sit for CLAT 2025, that is next year's December, I have a very important session for you. If you are in your 11th currently, how can you start your preparation right away? What are the things that you need to know? What are the suggestions that I have as a CLAT mentor? Everything there for you right in this session. So make sure you stick with me till the end of the session and you pay attention to whatever I explain. At any moment, कहीं भी आपके mind में कोई भी doubt है, कोई भी question है अपनी preparation को लेके, make sure the question is right there in my chat, so that I am able to address your doubts right away. So first and foremost, big congratulations to you. I'll tell you why. Congratulations because आपको ये realization है, आपको ये पता है कि आपको क्या करना है. You have some clarity in your life. A lot of students, specifically in 10th, 11th, 12th, या तो ये नहीं पता होता सब्जेक्ट क्या लेना है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ये भी कंफ्यूजन होता है कि ठीक है 12th के बाद what we are supposed to do. Since you already have decided that you're going to prepare for CLAT, or if you are somebody who thinks this is an examination I can take, I can be a lawyer someday, this session answers all your doubts about your preparation along with class 11th. So everybody, let me make it clear कि ये 2025 CLAT होगा कब, कौन इसको दे सकता है, कब इसको दे सकता है, सारे क्वेश्चंस आपके इस सेशन में आंसर होंगे. प्लस हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आप अपनी 11th ग्रेड के साथ, how you can prepare for CLAT simultaneously, what should you be doing, what you should not be doing for your preparation. So let's kickstart our session and I'll tell you exactly about what CLAT is very quickly before I jump onto the strategy, and what is CLAT 2025 specifically, okay? So CLAT is a common law admission test that is conducted by 22 NLUs. So we have national law universities in India. अब I'm sure आपने नाम सुना होगा, जैसे engineering के लिए IITs है, management के लिए IIMs है, ये आपकी government aided organizations होते हैं, right? Good evening, PCB ले ली है, ठीक है? Confused हूँ कि क्या आर्ट्स लूँ मैं, अभी शिफ्ट हो जाऊँ. लीला, पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो, अभी आप कौन से ग्रेड में हो? हाय अक्षिता, आप कौन से ग्रेड में हो? लीला, कौन से क्लास में हो आप? ठीक है, और इस सेशन के एंड तक आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा. आई विल डिस्कस सम क्राइटेरियाज विथ यू, सम पैरामीटर्स विथ यू व्हिच यू नीड टू रिकंसिडर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. ठीक है, एंड मेक श्योर यू शो दिस सेशन टू योर पेरेंट्स एज वेल सो दैट दे कैन हेल्प यू विद डिसाइडिंग. अगर आपने अभी PCM लिया है, PCB लिया है, should you stick to it or should you change? So make sure your parents also see this session. Good evening everyone. Hi. ठीक है. So as I was saying, अगर आपको engineering करनी है, the best of the colleges you can dream of is IITs. If you want to be an MBA, a management graduate, the best of the colleges that you can think of is IIMs. Right? These are government aided colleges that are established in accordance with the government, the central and the state governments. And they help these colleges set a benchmark in education. तो अगर आप law as a career option सोचते हैं, best of the colleges अगर आप सोचेंगे, उनको हम national law universities बोलते हैं. और अभी currently हमारे country में approximately 22 NLUs हैं. The idea is to open up at least one in every single state. There are a few states जहां 2 भी NLUs हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, वहां 2 NLUs हैं. तो ऐसे कुछ states हैं जहां 2 NLUs हैं. But idea ये है governance का कि हर स्टेट में एक NLU होना चाहिए. ठीक है, अब NLUs सबसे sought after colleges होते हैं जहां बच्चे जाना चाहते हैं, where they wish to go to, because these are prestigious colleges, the best of the colleges our country has to offer, that will provide you with a degree in undergraduate and postgraduate program. Now since you guys are aiming for an undergraduate program, आप कैसा program choose करते हैं? ठीक है, okay, मंगल 24-25 आप 11th में है लीला. ठीक है, सेशन एंड तक देखना, मैं आपका क्वेश्चन काफी पैरामीटर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, तो ओवर द सेशन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस पैरामीटर्स. ठीक है,
ऑल राइट, सो हियर वी गो। उत्तराखंड के लिए पूछ रहे हो? सिंस यूर विश्ड आई कैन गेस इट या नॉट येट। तो अब जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले ग्रेजुएट करना होता था किसी को, फिर 3 इयर्स का आपको एक LLB प्रोग्राम परस्यू करना होता था आफ्टर ग्रेजुएशन। बट गवर्नमेंट ने बोला ये तो 6 साल बहुत हो जाता है, लेट्स मेक अ प्लान, हम NLUs बनाते हैं। NLUs आपको 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन प्लस एक LLB डिग्री प्रोवाइड करेंगे, तो 1 साल बच भी जाएगा आपका, प्लस आप ये LLB फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो यू स्टडी LLB in detail for the next 5 years. Additionally, you'll save 1 year. That's called a 5-year integrated law program provided by all the NLUs. Plus, we have some private colleges as well that provide you 5-year LLB. 3-year LLB जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो कंटिन्यू हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में अभी भी चल रहा है वो, जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी देखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी देखते हैं। 3-year LLB अपनी जगह पे है, बट 5-year LLB इज द न्यू प्रोग्राम। न्यू नहीं बोलूंगी, पिछले कई सालों से चल रहा है, ये 2007-8 से चलता आ रहा है, तब से आप 5 साल का LLB प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉल्स 24-25 के लिए, मंगल आई डिड नॉट गेट यू, आई एम सॉरी। बेसिकली 2024 का, लेट मी मेक सम क्लैरिटी हियर, ये 24 क्या है, 25 क्या है। देखिए, जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, जिनका 12th का एग्जाम मार्च-अप्रैल में होने वाला है, उनके लिए क्लैट 2023 के दिसंबर में हो जाता है, जो अभी 3 तारीख को है, 3 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम है। ये वो बच्चे देंगे जो अभी क्लास 12th में है, मार्च में अपना 12th कंप्लीट करेंगे, वो अपने बोर्ड्स के पहले ही क्लैट का एग्जाम दे देंगे। तो इस क्लैट को हम क्लैट 2024 बोलते हैं, क्योंकि एडमिशन आपको 2024 में ही होने वाला है, ठीक है। इफ यू आर इन योर 11th ग्रेड, you will complete your 12th in 2025 March. You are going to be sitting for CLAT in 2024 December. And your admissions will be closed by January and February. Okay? In 2025. That's why this program, if you are in your 11th currently, your admissions will be happening in 2025, but you are going to sit for CLAT in 2024 December. So, आपका टारगेट ईयर 2025 कहलाता है। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी एवरीवन कि ये 24-25 क्लैट क्या है, ठीक है। और ये क्लैट एग्जाम आपको कहाँ लेके जाएगा और आप कितने साल के लिए वहां पढ़ाई करेंगे। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी ओवर इट। ओके, सो यू गेट अ 5-year इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम। अब ये LLB आपका एक डिग्री होता है, प्लस साथ में आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है। सो सबसे कॉमन जो डिग्री मिलती है वो होती है BA। Now, if you are watching me still, Leela, BA degree मिलती है, but a lot of colleges, a lot of these NLUs provide you as an option to pick up BSc, BBA, okay? Some give you a BCom degree. The idea is that after these 5 years, will these degrees matter? Or is this the degree that's going to fetch you a job? The idea is these degrees do not matter in the long run. What matters is this and where you got this degree from. It's only a degree जो आपको करना जरूरी है तो किसी भी प्रोग्राम से कर लो जहां आपका मन करेगा, बट आपके अल्टीमेट स्कोर्स जो आपको एक प्लेसमेंट दिलाएंगे वो इसके होंगे। आपका एक्सपीरियंस इस कोर्स में मैटर करेगा, आपका इंटरैक्शन इस कोर्स में मैटर करेगा, ना कि आपने BA किया या BSc किया कि मैं BBA वालों को जॉब दूंगा, मैं BA वालों को जॉब नहीं दूंगा। दिस डिग्री डज नॉट मैटर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, whatever background you have, humanities or commerce or science, is CLAT concerned about that? No. It does not care which background you belong to. It gives no weightage to whatever stream you have chosen. If you ask me as a layman, as a mentor, which stream should you choose? The idea is choose a stream that's easier for you to study if you're absolutely clear about taking CLAT as a career option for you, law as a career option for you. अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे लॉ करना है, तो फिर एक ऐसा प्रोग्राम लीजिए, एक ऐसा स्ट्रीम लीजिए
जहां आपको कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने में आसानी हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्रोग्राम जहां आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो वो आपको क्लैट के लिए बहुत कम टाइम दे रहा है। ऐसा ना हो कि आप अपने स्कूल में मार्क्स ले आए जो कि अब शायद कहीं मैटर नहीं करेंगे आफ्टर CUET coming into existence and examinations like CLAT not giving any weightage to your school scores. If you take up a program that demands a lot of study from your side, you will not be able to give enough attention to the exam that you're preparing for simultaneously. If you do not wish to sit for any of these entrance examinations like JEE or IIT, I don't think there's any need to take up science or maths as an additional subject. ठीक है मैम, for humanities BA LLB is better than any other, right? अक्षिता, ये क्वेश्चन भी मैं आंसर करती हूँ कि BA LLB बेटर है या BB LLB बेटर है, इसको भी मैं साइमल्टेनियसली आंसर कर देती हूँ। देखो, आपको ये 5 ईयर डिग्री मिलेगी और मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि ये आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। BA करोगे, BBA करोगे, अभिमन्यु सर इज एन NLU पास आउट, शुरुजीत सर इज, निवेदिता मैम इज, क्या किया? BA किया, BBA किया, BSc किया, BCom किया। डू यू नो? नो। डू यू केयर? नो। विल द ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग यू केयर? नो। बट इफ यू have a background of commerce, you can take up a subject that's easier for you to study like BB or BCom. If you have a background for humanities, take up BA. It's easier for you to understand. Indifferent हो, BA ले लो, सबसे आसान है पढ़ने के लिए, सबसे इजीली पास कर दोगे क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ के मार्क्स मैटर करेंगे। BA BCom के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, तो BA सबसे आसान कोर्स होता है, कम अमाउंट ऑफ एफर्ट में ज्यादा आउटपुट देता है, BA चूज कर लेना। I hope you get some clarity on what program you should opt for. Okay, no Akshita. CUET will not help you get into any NLU. If you wish to get into an NLU, you either have to sit for CLAT. 22 NLUs एडमिशन लेते हैं इसके थ्रू। एक NLU है which is NLU Delhi, जो एक अलग एग्जामिनेशन लेता है, that's called AILET. So these are the only 2 examinations that will give you admissions into NLUs, no other examination. Let's talk more about CLAT. क्या आता है? अब आपने डिसाइड कर लिया मुझे CLAT करना है, मुझे NLUs में जाना है, I want to become a lawyer. What does this examination ask you? This examination is going to be conducted for 2 hours, offline, pen paper based examination till this year. Next year क्या होगा nobody knows, but अभी तक ये pen paper based exam है, 120 marks का है। शुरुआत हुई थी CLAT की 200 नंबर के पेपर से, then they reduced it gradually to 150. Recently, a couple of months back, they reduced it to 120. And now you have 2 hours for that. You have +1 for every correct and 0.25 for every incorrect answer. But ये बहुत ही मिनिमल सी चीज है, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि पूछा क्या जाएगा। So you have these 5 sections जिसपे आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। Now let me bring some more clarity on ये कितने मार्क्स का है और इनमें क्या क्या आ सकता है। एक जल्दी से ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ so that you have an idea. English language. Let me change the color of my pen first. Everyone. English language. This is the latest pattern, 120 marks का। Remember, few months back only they reduced the marks from 150 to 120. तो अभी करंट न्यूज ये है कि इस साल जो दिसंबर में क्लैट होगा 24 एस्पिरेंट्स के लिए, वो भी 120 मार्क्स का होगा और उसी असम्पशन पे हम 2025 की प्रिपरेशन करेंगे, 120 मार्क्स का पेपर। इंग्लिश रफली, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, रफली 24 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आपको देना चाहिए। 24-25 के आसपास क्वेश्चन आने चाहिए, एक रेंज दिया है उन लोगों ने। वही चीज लॉजिकल रीजनिंग के साथ हो जाती है, 24 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। देन यू हैव करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग। अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम लीगल रीजनिंग हमको तो आता ही नहीं कुछ लॉ में, हम कैसे करेंगे ये चीज? आंसर करूंगी मैं। ये रफली आपका 30 मार्क्स का ऑन एन एवरेज सेक्शन होना चाहिए दोनों, ये हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। फिर आते हैं सेकेंड हाईएस्ट इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में, एंड देन कम्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, ये रफली 12 मार्क्स की आनी चाहिए। ये क्यूमुलेटिव स्कोर आपका 120 आता है, आपको 2 घंटे मिलेंगे इसको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है अगर गलत किया आपने तो, अनअटेम्प्टेड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेक्शंस में क्या आएगा। मैथ्स मेरा वीक है, क्या मुझे करना चाहिए? मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिर्फ 12 नंबर का आ रहा है, क्या मुझे करना चाहिए? ठीक है। क्लैट में DU एडमिशन मंगल, यस, इस ईयर अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए वो क्लैट के स्कोर्स लेंगे तो आपको क्लैट का फॉर्म भर देना चाहिए। अभी भी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, भर देना क्लैट का फॉर्म अगर आप इस साल क्लैट देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। दिस ईयर
This year, Delhi University has clarified that they're going to take admission through CLAT scores. So make sure you fill out that form. Okay, back to it. Let's talk about quantitative techniques. आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, आप बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरी तरह आपका हार्ट टाइट है, आपको समझ में नहीं आता मैथ्स में कुछ भी. देखो 12 नंबर का रफली पेपर आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स टिल 10th grade. Percentages, averages, ratio proportion. Maximum questions belong to these 4 categories. All of these have been done by you over and over and over again in the last 2-3 years. Even if you've left mathematics in your 10th grade and you don't have it as a subject right now in your 11th, it does not matter because it's basic maths that's asked. Even if you're utterly pathetic like I am in mathematics, you can easily score 5-6 marks here. And that will ensure your average goes up. What comes in legal reasoning? आपको एक definition दे देंगे डाउरी के लॉ के बारे में कि क्या है डाउरी का लॉ, और ये बताएगा, एग्जाम्पल है कि डाउरी का लॉ सिर्फ मैरिड वुमेन को फेवर करता है. उसमें जितना भी सामान आया था वुमेन के घर से वो वुमेन को वापस मिलेगा, जितना भी सामान ग्रूम के घर से दिया गया था वो वुमेन को मिलेगा. बहुत सारी चीजें डेफिनेशन में बता दिया है लॉ क्या है. उसके नीचे एक केस दे देंगे कि ए पर्सन ने क्लेम किया कि मुझे डिवोर्स लेना है एंड दीज आर द आइटम्स दैट वर गिवन इन डाउरी. क्या वो एलिजिबल है वो आइटम्स वापस रिसीव करने में? आपको आंसर करना है यस एंड. बी पर्सन है जो लिव इन रिलेशनशिप में थी, मैरिड नहीं थी, वो बोल रही कि मेरे घर वालों ने ये सामान दिया था, मुझे ये सामान वापस चाहिए. इज शी एलिजिबल अंडर डाउरी लॉ? नो, शी इज नॉट, बिकॉज डाउरी लॉ सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए है. क्वेश्चन में लॉ लिखा हुआ है, नीचे आपको एक केस दिया गया है, आपको लॉ समझ के केस में अप्लाई करना है. इफ यू अंडरस्टूड द लॉ गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट, it basically checks your aptitude towards law. क्या आप लॉ क्या है ये समझ पा रहे हो? एक सिंपल सा लॉ, क्या आप उसको एग्जिस्टिंग केस में अप्लाई कर पा रहे हो? जब क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ ये मैरिड वुमेन के लिए है, हाउ कुड somebody claim it if you were not married and only in a live-in relationship? That's logical reasoning, right? Basically, it's nothing but law plus reasoning. You just have to use your reasoning bent of mind. Logic सही होना चाहिए, illogical कुछ भी नहीं है law में. Remember that. And then comes current affairs and general knowledge. Whatever is happening in the last 1 year and related GK is important. So current affairs, last एक साल में क्या हुआ, उसी से related general knowledge, last एक साल में क्या हुआ. अगर इजराइल न्यूज में था, इजराइल का कैपिटल, इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये जनरल नॉलेज हो गया. अगर हमास न्यूज में है तो उसकी ज्योग्राफी के बारे में, अगर यूक्रेन न्यूज में है तो उससे रिलेटेड उनके लीडर्स, उनकी ज्योग्राफी, उनके कैपिटल्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दैट्स करंट अफेयर्स एंड जीके. एंड मैम NLU Delhi वाली प्लेस स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 24, 25 2 or this year only. Akshita, if you are going to pass out in 25, you have to sit for CLAT next year and AILET for NLU Delhi also next year. Okay, this year the paper is going to happen. Akshita, it hasn't happened yet. The paper is going to happen on 3rd of December. Only then we will know what is the cutoff. But I will give you an overview of what an average cutoff could be. Although the cutoff is pretty unpredictable because it depends upon the difficulty level of the paper. कभी कभी पेपर बहुत आसान होता है, कभी कभी पेपर डिफिकल्ट होता है. अगर बहुत आसान होता है तो 110 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, बट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो 90 तक इजीली ड्रॉप कर सकती है बेस्ट 4 NLUs में. अगर आप बॉटम NLUs में देखेंगे तो काफी ड्रॉप हो जाती है, फिर वो 80s तक भी जा सकती है. Depends upon the difficulty level of the paper. Your aim should be to be able to score around a 90 in the mock tests that you get best of the colleges. ये आपका एम होना चाहिए 120 में से. तो देखो बैक टू इट, अगर मुझे 90 स्कोर करना है और क्वांट मेरा वीक है, मैं अगर यहाँ 5 मार्क्स भी ले आती हूँ और मुझे पता है इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है या जीके मेरा स्ट्रांग है या लीगल रीजनिंग जो आप सबका स्ट्रांग होगा, आई एम श्योर, ये अगर आपका स्ट्रांग है तो इसमें 30 में से अगर आप 20 मार्क्स भी ले आते हैं या 25 मार्क्स भी ले आते हैं, यहाँ भी अगर आप 20-25 मार्क्स ले आते हैं, आपके लिए कट ऑफ रीच करना कितना आसान होगा.
So it's not a very difficult examination given the right technique, given the right guidance, given the right strategy. And again, as I said, congratulations, since you know that already, you will get an early starter's advantage. A lot of people don't realize that till the last month, और उनके लिए बहुत difficult होता है preparation करना. The sooner you start, the better it becomes for you. All right? So that's the basic pattern of this examination. अब एक बहुत important चीज जो मैं आपको बताती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि 2 है, 4 है, 6 है, तो इसके बाद क्या आएगा. है ये भी लॉजिकल रीजनिंग, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. लॉजिकल रीजनिंग इज एक्चुअली critical reasoning. They give you passages, roughly 5 to 6 passages, and you are given questions that you're supposed to answer on the passages. The same happens in English as well. You'll get roughly 5 to 6 passages and you're given questions to answer. English language and critical reasoning, which is named as logical reasoning, are interconnected sections. They are pretty similar to each other. The entire paper is reading based. You will get passages here, here, and here as well. Passages के through आपको questions answer करने पड़ेंगे. And it also has a reason. The reason is, if you're going to be lawyers, you're going to read a lot of material, right? Read a lot of cases, history. So the examiner expects you to have some fondness and some compatibility with reading passages. You're able to understand that. Static GK कैसे कवर करना है? Okay. देखो बच्चे, स्टैटिक जीके हार्डकोर स्टैटिक जीके नहीं आती है, वो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आती है. ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट कम टू द स्लाइड वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी विथ यू कि आपको क्या करना चाहिए, और फिर आपको एग्जैक्टली मैं बताती हूँ कि स्टैटिक जीके पे आपको कैसे काम करना चाहिए. ठीक है, पैटर्न में आई होप किसी को डाउट नहीं है क्या पैटर्न आने वाला है इस ईयर के एग्जामिनेशन में. होपफुली नेक्स्ट ईयर भी यही पैटर्न रहना चाहिए. अब आता है क्वेश्चन, क्या अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? अभी तो मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं 11th ग्रेड में हूं और फाइनल एग्जाम आ जाएगा, तो मैं फाइनल एग्जाम के बाद प्रिपेयर कर लेता हूं. देखो, सबसे पहली चीज तो ये, जैसे जैसे आप अपने 12th बोर्ड्स के पास आते जाते हैं, वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाता है. इफ यू आर इन 11th currently, the pressure is less. Every passing month your pressure will increase. You'll have your 11th finals, then you will enter your 12th. The pressure increases even further more. Then you have your half yearlies, then you have your pre-boards, then you have your sectional tests. The pressure increases with every passing month. Is it going to be easier for you to start preparation for CLAT in the later half of the year, or is it going to be easy for you to do it right away? The sooner you start, the easier it is for you, because abhi pressure least है, gradually वो बढ़ेगा ही. स्कूल से एक्सपेक्ट करेंगे आप अच्छा परफॉर्म करें, और क्यों नहीं करेंगे, जस्टिफाइड है, तो उनका प्रेशर होगा आपके ऊपर. इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट करते हो अपना कोर्स और प्रिपरेशन, उतना आसान होता है आपके लिए उस कोर्स को कवर अप करना. दैट्स व्हाई शुड यू स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ. The sooner you start, the better it is for you. अभी स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे मेरा मैथ्स वीक है, तो मेरे लिए अभी एफर्ट डालना आसान होगा, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ माय 12th बोर्ड्स, और फिर साथ में परसेंटेजेस भी कर जो मेरे स्कूल में है ही नहीं, जीके कर रहे जो मेरे स्कूल वालों को कंसर्न ही नहीं जिस सब्जेक्ट से. ओके, नाउ धीरज सेज, मैम 11th में लीगल रीजनिंग एज ए चॉइस सब्जेक्ट लेने का कोई एडवांटेज है? एब्सोल्युटली है. Absolutely, 100% appreciated. If your school gives you a choice of taking up legal, a section as an additional subject, go ahead, do that right away. On our channel, we have Surajit sir taking additional classes for your legal reasoning for your 11th and 12th. Make sure you attend those classes. These classes will help you a lot. They happen every week. Find that out, Dheeraj. Go ahead. I will give you a good heads up for that. NLU में एडमिशन कब होता है? मंगल, NLUs में एडमिशन रफली आपको अप्रैल मई तक एडमिशन हो जाता है आफ्टर योर 12th इज डन. बट आप एक साल पहले दिसंबर में क्लैट दे चुके होते हैं, AILET दे चुके होते हैं. ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करोगे, आसान होगा अपनी वीकनेस पे काम करना. जीके, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, आपको पता भी नहीं है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अभी नहीं पता है. अभी स्टार्ट करोगे तो आसान होगा ना कवर अप करना, लिंकेज बनाना. इंस्टेड ऑफ 12th में पेपर उठाए और आपको लगा सब एलियन है भाई, मुझसे नहीं हो रहा है.
The sooner you start, the better it is for you. All right? Then let's talk about preparing smartly. देखो बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं. We have roughly 60,000 candidates sitting for CLAT every year. This year we still don't have the fixed number because अभी भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं. But on an average 60,000 लोग CLAT देते हैं. ठीक है. इसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है बट परसेंटेज काफी हाई होता है क्योंकि बहुत सारे लोग CLAT नहीं पता जिनको. वो नंबर नहीं है कि 4 लाख 5 लाख 9 लाख लोग दे रहे हैं जैसे JEE दे रहे हैं. That's not the case here. सिलेक्शन रेशियो काफी हाई है. बट इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्मार्टली, यू नो आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज आपको CLAT क्लियर करने से रोक सकती है, क्या चीज इंश्योर करेगी कि आप CLAT क्लियर करें. यू नीड टू नो अपने बेसिक्स. इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना बेटर होता है क्योंकि वो प्रिपरेशन स्मार्ट प्रिपरेशन होती है, नॉट अ फूलिश वन. जब आप बहुत लेट रियलाइज करते हैं 10 दिन पहले कि अच्छा CLAT का फॉर्म भी भरते क्या मम्मा, भर देते, देखा जाएगा क्या होगा, एग्जाम ही तो देना. नो नो, इट डजंट हैपन दैट वे. सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू. अब देखो कुछ चीजें पहले बताती हूँ. CLAT किन चीजों पे टेस्ट करता है आपको, और नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी. मैम अभी डेली स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए 11th और CLAT को कवर करने के लिए? क्या 11th के मार्क्स कम आएंगे तो चलेगा? धीरज, CLAT आपसे 50% नंबर मांगता है 12th में. 11th नहीं, 12th के मार्क्स भी कम आएंगे तो बिल्कुल चलेगा. मेक श्योर वो चलेगा विथ योर पेरेंट्स एज वेल. कन्विंस देम, मेक देम सी दिस वीडियो, ओके, एंड कन्विंस देम कि 50 नंबर नहीं, अगर मैं 70 पे ले आता हूं and I'm able to get a very good NLU. Is it a good deal? It is. But if I get a 98% and then I'm, God forbid, not able to clear the best of the NLUs, is that a good deal? Those 98% marks actually wouldn't matter a lot in the long run. What matters is which college you go to for your higher education. 11th में कम मार्क्स आते हैं, I have no problem with that. 12th में भी डिसेंट ले आते हो, आई एम गुड टू गो विद दैट. पास कर लेना सारे सब्जेक्ट, डिसेंट मार्क्स ले आना. योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी हैप्पी, योर टीचर्स आर गोइंग टू बी हैप्पी, दे विल बी द हैप्पीएस्ट इफ यू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. इजंट दैट? वो आपके नाम का पोस्टर बनवाएंगे अगर आप एक अच्छा कॉलेज निकालते हैं तो. दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक योर करियर, नॉट योर स्कोर इन योर 11th ग्रेड. अभी एक प्लान बनाओ, स्टार्ट वर्किंग राइट अवे. आपके 11th के फाइनल्स अभी भी 5-4 मंथ्स दूर हैं. 2 महीने भी अगर अपने 11th की तैयारी करोगे तो भी आप मिनिमम 60-70-80% ले आओगे. आई एम श्योर ऑफ दैट, है ना. लेकिन अगर अभी से CLAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपके लिए एक हेड स्टार्ट होगा, पुश होगा, बहुत आगे निकलोगे आप बाकी बच्चों से क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे बहुत ज्यादा कोर्स कवर अप कर चुके होगे. आई होप धीरज आई गिव यू अ कन्विंसिंग आंसर हियर. अब ये देखो CLAT डिमांड क्या करता है. CLAT सबसे पहली चीज डिमांड करता है एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ो और पढ़ के समझ पाओ. ये पूरे पेपर में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, इंग्लिश. There are 4 sections dependent on this. You are able to read a paragraph, you're able to interpret कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, भाई यहाँ बात क्या हो रही है, समझ आएगा तभी तो क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो CLAT डिमांड करता है वो ये है. और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लॉजिकल स्किल्स. क्या ये इसका मतलब ये है कि क्या आप लॉजिक लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते. जैसे मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया था, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आना चाहिए, ये लॉजिक ही तो है ना. अगर मैंने आपसे कुछ बोला तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूं आपसे, वो भी लॉजिक है. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लीगल रीजनिंग का, वो भी लॉजिक है. एक और एग्जाम्पल देती हूं. किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप अपनी पोजेशन में लेते हैं उसके ओनर के नॉलेज के बिना तो वो थेफ्ट कहलाता है. जैसे आपने मेरा पेन ले लिया मेरे से पूछे बिना, वो थेफ्ट है. लेकिन अगर मैंने आपके घर में जाके आपका ट्री कट किया आपसे पूछे बिना और मैं ट्री ले आई अपने घर, तो क्या वो थेफ्ट होगा? क्योंकि ट्री तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्या वो थेफ्ट होगा? थोड़ा लॉजिक लगा के बताइए मुझे एवरीवन. डेली आंसर करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में. धीरज स्टार्टिंग जीके कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आंसर करूंगी.
तो आंसर क्या है? होगा क्या वो? होगा, क्योंकि द मोमेंट यू कट इट, इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। लॉजिक लगाना है, आपका लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड चेक होगा। सिंपल इज दैट। तीसरी चीज, जनरल अवेयरनेस। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? क्या आपको पता है क्या हो रहा है दुनिया में? पता होना चाहिए, आप लॉयर बनेंगे। अगर आपकी जनरल अवेयरनेस वीक है, आप एक अनफिट लॉयर बनेंगे। इसलिए क्लैट एक्सपेक्ट करता है आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी हो और थोड़ी सी न्यूमेरिक एबिलिटी, 10 से 12 नंबर की न्यूमेरिक एबिलिटी, ये बहुत कम वेटेज की होती है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आंसर कर पाते हैं इन तीनों चीजों से। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि ये अक्रॉस द पेपर विजिबल है। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। ठीक है, आते हैं स्ट्रैटेजी में। सबसे पहला क्या करना चाहिए? अब सबसे पहली चीज, गेट इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग। आप बुक्स पढ़ते हैं, बेस्ट बेस्ट फॉर यू, इट कैन नॉट गेट बेटर। इफ यू डोंट रीड बुक्स, आई एम ओके, बट get into a habit of reading. Read from a variety of sources. Read anything you get your hands upon. Newspapers, journals, articles, magazines, जो भी पसंद है आपको, जिस भी टॉपिक पे पसंद है आपको। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप पसंद है, उस पर आर्टिकल्स पढ़ो। स्पोर्ट्स पे पढ़ो। कार्स पसंद है, उन पे पढ़ो। बाइक्स पसंद है, उन पे पढ़ो। कुकिंग पसंद है, उन पे पढ़ो। Whatever you like, get into a habit of reading. Introduce yourself to different genres, different words that you must have heard but you do not know the meaning of. क्योंकि पूरा पेपर रीडिंग बेस्ड है, आपको रीडिंग के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और ये एक चीज है जो टाइम लेती है। इसीलिए द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट बिकम्स फॉर यू। राइट? स्टार्ट योर हैबिट ऑफ रीडिंग राइट अवे। आज से उठाओ जो भी चीज आपको लगती है। आई विल हैव अनदर सेशन ऑन आप कहां से पढ़ सकते हैं। आई वुडंट डिस्कस दैट टुडे। एक सेशन और करूंगी नेक्स्ट वीक, वेयर आई टेल यू आप कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजिंग बिगिनिंग में, बट उन टॉपिक से स्टार्ट करो जिनके बारे में पता है आपको, वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे पढ़ना। आई गिव यू एग्जांपल्स लाइक स्पोर्ट्स, क्रिकेट, व्हाटएवर यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी एरे बढ़ाओ धीरे धीरे। फिर दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एज अ बिगिनर। Second thing, now I'm going to answer static GK question. You have to drown yourself in newspapers. ये आपका first love हो जाना चाहिए. Not your school, not your spouse, not anything else, not your parents. This has to be your first love. Any mentor you speak to will tell you newspapers are something that you just cannot miss if you're preparing for CLAT. So this has to be your first love. आपको नहीं पता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने नहीं पढ़ा पिछले 10 सालों में न्यूज़पेपर्स, कोई बात नहीं, किसी दिन तो शुरुआत होती है। आज होगी शुरुआत, ऊपर वाले का नाम लो, स्टार्ट कर दो जर्नी अपनी, न्यूज़पेपर्स में डूब जाओ बिल्कुल। अब बात आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक रैंडम नहीं आती कि कौन से ईयर्स में मुगल्स ने इन्वेड किया था और उनके कौन कौन से रूलर्स थे, नहीं, स्टैट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज आई सेड, स्टैटिक वो इंपॉर्टेंट है जो अभी न्यूज में है। आई टेल यू, एक बिगिनर की तरह आप कैसे बिगिन कर सकते हो। अगर इजराइल न्यूज में है, जाइए विकिपीडिया पे इजराइल खोलिए और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़िए, उसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा पढ़िए, उसके लीडर्स के बारे में थोड़ा पढ़िए, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़िए। वो आपको समझाएगा कि इजराइल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ लोकेटेड है, कौन से सराउंडिंग नेशंस हैं, पॉलिटिकली क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, अभी क्या क्राइसिस चल रही है। विकिपीडिया आपको सब बताता है। एक जनरल अवेयरनेस के बारे में रिलेटेड पढ़िए, ये आपको न्यूज़पेपर्स में इंटरेस्टेड भी बनाएगा और आपकी स्टैटिक रिलेटेड भी इंक्रीज करेगा। वर्ल्ड कप न्यूज में है, वर्ल्ड कप जाओ विकिपीडिया पे, देखो कब स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से विनर्स थे, कितनी टीम्स खेलती हैं, कौन सी टीम न्यू एंट्रेंट है, किसने स्टार्ट किया, उसके बारे में पढ़ो। जो भी न्यूज में है उसको जाके इंटरनेट पे सर्च करो, उसके बारे में, करंट न्यूज के बारे में नहीं, उसके बैकग्राउंड के बारे में सर्च करो। जैसे ही आप बैकग्राउंड सर्च करोगे, you'll get an idea. Akshita, that's how you deal with it. A lot of people don't like. चलेगा धीरज, whatever, begin with it. देखो पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, जिसमें भी इंटरेस्ट है वहां से शुरुआत कर सकते हो। ओके, तो
आई एम श्योर 90% ऑफ द किड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। भैया नहीं पढ़ा जाता मुझसे न्यूज़पेपर, बोरिंग लगता है। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, तरीका सही होना चाहिए। रोज पढ़ो, एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर का यूट्यूब चैनल पे, उस पे आओ, देखो क्या आपने जिस तरीके से पढ़ा वो सही था, कुछ बैकग्राउंड मिस हो गया, सालिक सर बताएंगे, अभिमन्यु सर बताएंगे आपको उसका बैकग्राउंड। ठीक है, सेशंस अटेंड करो, जितना ज्यादा सेशन अटेंड करोगे उतनी ही आपकी कंफर्टेबिलिटी। इट्स लाइक एक वर्ड याद नहीं हो रहा, 10 बार देखोगे याद होगा, 50 बार देखोगे बिल्कुल पक्का याद होगा। जीके भी वैसा है, न्यूज़पेपर भी वैसा है। खुद पढ़ो, फिर एनालिसिस देखो, फिर खुद रिसर्च करो, 100% इट विल बी देयर इन योर हेड। यू डोंट just have to memorize things. More familiarity with a topic, more interaction with your mentors, that ensures that you're comfortable with newspapers. So I hope you get some clarity on how you can be comfortable with what's happening around the world and how you can do static GK here. So Leela, you got some clarity on this, everyone? All right. Third thing, get your basics clear. जल्दी स्टार्ट करने का एक और बेनिफिट होता है, मुझे पता भैया मैं भूल चुकी हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और ये क्लैट में आता है और बेसिक है। फिगर्स ऑफ स्पीच स्कूल में कितने सालों से हो रहा है इंग्लिश में? रिमेंबर एलिटरेशन, मेटोनिमी, ओनोमेटोपिया, सिमिली, मेटाफर, याद है ये सब? नाम सुना है, भूल गए मैम। गेट यू बेसिक्स क्लियर, स्कूल के साथ साथ रिवाइज कर लो, आएगा क्लैट में। ग्रामर, एडजेक्टिव क्या था, एडवर्ब क्या था, भूल गए, रिवाइज कर लो, फिर से चल रहा है ना स्कूल में, रिवाइज कर लो। गेट योर बेसिक्स क्लियर राइट अवे, ताकि जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चन देखो तो आप डरो नहीं उनसे। ये टाइम है बेसिक्स क्लियर करने का, एंड दैट्स व्हाई आई से द सूनर यू स्टार्ट द मोर टाइम यू गेट योर बेसिक्स क्लियर। न्यूज़पेपर्स आज से 6 महीने बाद स्टार्ट करो, यू विल रिग्रेट, मुझे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक साल की जीके इंपॉर्टेंट है, जनवरी ऑनवर्ड्स। उसके पहले बैकग्राउंड बना लोगे तो जनवरी की जीके आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि जनवरी की जीके अपसर्डली पैदा होके नहीं आएगी ना, चल रही होगी पिछले कुछ टाइम से, कंटिन्यूड चल रही होगी स्टोरी। कंटिन्यूड चल रही है तो स्टोरी आज स्टार्ट करो ना, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। गेट योर बेसिक्स क्लियर राइट अवे, पता करो कोर्स में क्या क्या आ रहा है, क्या चीजें आप स्कूल के साथ कर सकते हो और उनको अभी करना स्टार्ट करो। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, डू देम राइट अवे। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखो 5 सेक्शंस आते हैं, कोई भी क्लैट का प्रीवियस पेपर देखे, देखो 2020 से स्टार्ट करके 2023 तक का कोई भी पेपर देखे देखो, यू विल नो, अच्छा ये सेक्शन में कर लूंगा, थोड़ी सी मेहनत के साथ मैं इंप्रूव कर लूंगा, यहाँ ये सेक्शन में मैंने बहुत खराब किया, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, मे बी जीके, मे बी मैथ्स, मे बी इंग्लिश। यू नीड टू नो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तभी तो अर्ली स्टार्टर के साथ में प्रिपरेशन कर पाओगे। इफ यू डोंट नो कि आप किसमें अच्छे और किसमें खराब हो, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल इधर उधर होने वाली है, स्कैटर्ड एवरीवेयर। यू नीड टू नो कि अच्छा ये मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे अगर 90 मार्क्स प्लस लेके आने हैं 120 में से, तो ये सेक्शंस हैं जहां मैं जरूर 100% एक्यूरेसी ला सकता हूं, ये सेक्शंस को मैं फिर भी 70 तक पहुंचा सकता हूं एक्यूरेसी अपनी, यहां मुझे ज्यादा काम की जरूरत है, यहां मैं बाकियों को बीट कर सकता हूं। Realize where are you good at and where are you bad at. Download our app on Google Play. Take any of the previous year papers. They're available for free there. पेपर सॉल्व करो, टेस्ट के जैसे लो और 2 घंटा बैठ के लो और फिर देखो क्या रिजल्ट निकला, और फिर उसकी एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, और फिर वर्क हार्डर देन योर पियर्स। पियर्स कौन होते हैं? आपका फ्रेंड सर्कल, आपके क्लासमेट्स, आपको उनको बीट करना है, वो आपका कंपटीशन है। कंपटीशन इन मेकिंग अ करियर फॉर देमसेल्व्स, कंपटीशन इन टेकिंग क्लैट, कंपटीशन इन गेटिंग बेटर इन योर लाइफ, बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। यू हैव टू बीट देम। इफ यू नो इट राइट नाउ, start your prep right now. Beating them will be easier because they are your ultimate competition in getting a seat in the best of the NLUs. Work harder, sleep lesser. They're going out, forget it. I would rather sit for 2 hours and take a mock test. I would rather sit for an additional hour and read the newspapers in depth. I would watch an analysis on YouTube by Salik sir. That's going to help me better. Let them do what they're doing. They're chatting on Instagram. I'm going to shut off Instagram. Probably uninstall it. No distractions needed. Everything else can wait for 1.5 years. I can do it a lot after my boards, after CLAT is done. Remember, you have to work harder than your peers.
You have to leave them behind. They are your ultimate distraction and your competition. Don't be distracted. You need to get some clarity over that, everyone. Did you hit the like button? If you haven't, please do that right away and share the video with your friends, with your parents as well. Share it to their number right away and ask them to watch it. Because if they are aligned with your thought process, they will help you guide and help you prepare better. वो आपको distraction से दूर लाने में आपकी help करेंगे, है ना? So if you haven't hit the like button, do that right away and share the video with your parents, your grandparents. Until now, I have given 2 mocks and I'm only able to do 3 sections. तो आपको पता आपकी weakness क्या है बच्चे? मैं बताती हूँ आपकी weakness क्या है. आप एक section को उतना time देते हैं जितना चाहिए. एक सेक्शन में को जितनी देर लग रही मैं उतनी देर लगा के सॉल्व कर रही हूँ. ऐसा ही हो रहा है ना अक्षिता? मुझे पता है ऐसा ही हो रहा है. ऐसे नहीं करते हैं. सेक्शन का टाइम सेट करते हैं कि ये सेक्शन मेरे को अब 35 मिनट में करना है तो मैं 35 में ही करूंगा. ये प्रेशर बनाओ अपने हेड पे. ऐसे एक मॉक लो, टाइम सेट करो हर सेक्शन के लिए. अब बाइट और फिर मुझे बताओ कि सेक्शंस पूरे हुए, स्कोर बढ़ा. आप यस आके बताएंगे मुझे. एंड देन find a mentor who can guide you, who can help you. A mentor is very, very important. This could be any one of us. This could be your parents. Trust your mentor. अगर वो आपसे कहते हैं ये करने की नीड है, उनको ट्रस्ट करो और करना स्टार्ट करो. Make your parents as your mentor. Ask them to guide you correctly. If you're going here and there, if you're using too much of phone, too much of TV, ask them to bring you back on track. If you're sleeping too much, ask them to wake you up. Spill a bucket of water on your head or maybe make you a cup of tea. That would freshen you up. But choose a good mentor that will help and guide you, because right guidance is very, very important for your preparation. I hope you got some clarity on how you can start right away with your 11th grade. Remember, the sooner you start, the more advantageous it's going to be for you. And on that note, we have a 3-day free trial going on our app. So 3 days के लिए आप free access कर सकते हो हमारे ऐप में. सब कुछ जो as a student, enrolled students access कर सकता है. सारी classes 2025 के लिए जो बैचेस है आप उनमें एनरोल कर सकते हैं फ्री. आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं फ्री. आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर फ्री. आप मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री नेक्स्ट 3 days के लिए. Register yourself. The link is there under my video in the description box. Do that right away, everyone. If you haven't subscribed to our channel, make sure you do that because there are loads of videos happening for 25 aspirants. We also have a free All India Open Mock. ये जरूर आप लेना. बिकॉज अगर आपको 25 के लिए देना है, पैटर्न सिमिलर 24 का होगा और ये फ्री ओपन मॉक है. ठीक है, तो ये 10th नवंबर से 18th नवंबर के बीच में लाइव होगा, लेकिन आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करके इस मॉक को लो लाइव 2 घंटे बैठ के तमीज से पेपर दो. ये 90% क्लोजेस्ट टू क्लैट है कि कैसे क्लैट होने वाला है. ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे डिपेंडेंट है. एंड देन यू हैव वीडियो सॉल्यूशंस. तो पेपर दो और देखो क्या सही हुआ क्या गलत हुआ. ठीक है, ओपन मॉक है, जरूर देना. ये रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वी हैव अ स्कॉलरशिप टेस्ट गोइंग ऑन आवर ऐप. सो इफ यू विश टू रजिस्टर विद अस, स्कॉलरशिप टेस्ट लो. यू कैन विन thousands ऑफ स्कॉलरशिप. 11th नवंबर 11 AM को टेस्ट है. रजिस्टर करो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टेस्ट लो, देखो आपने कैसा परफॉर्म किया. यू कैन विन thousands ऑफ स्कॉलरशिप. एंड 2024 एस्पिरेंट्स के लिए क्रैश कोर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. मिस नहीं करना. Barely 8 days left for CLAT. Every single day 9 PM we have classes happening. आज भी है, कल भी है, रोज है. Crash course for 24 aspirants. Don't miss out on that, everyone. Test series for 2024 aspirants. That's the number of our counselors. Call them right away. Comes for very nominal cost. रोज एक टेस्ट ले सकते हो. And our tests are closest to CLAT. Make sure you do that. 25 aspirants के लिए new batch. That's the number of our counselors. Link there under my video in the description box. Make sure you follow us on all our social media handles. We have Telegram, Facebook, Instagram. नहीं है, बहुत अच्छी बात है. YouTube पे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को and download app on Google Play. I hope you were benefited with the session, everyone. If you were, make sure you comment under the video. If you have any doubts, comment under the video. I shall see you in the next class very soon. Comment जरूर कर देना. Have a very good evening, everyone. God bless you.